so that you can put your energy in one direction which can be used in other thing as well. वहाँ से सक्सेस मिली, मोटिवेशन अब और ज़्यादा हाई हो गया है कि यार मैं सिविल सर्विसेज भी आगे जाके ट्राई करता रहूँगा। अपने आप को एक्सपोज करना है आपको when you are in college, and I have that confidence, I am exposed to at higher levels, तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ. फिजिकल मेडिकल के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा? The chairman sir asked first question from me and I was completely blank in it. The chairman sir was very disappointed and जब मैं इंटरव्यू बाहर दे के आया मैंने कहा हो गया. मुझे ये लगता है कि जो बंदा उस चैलेंजेस के अंदर मज़ा लेना शुरू कर दे और वही बहुत बढ़िया तरीके से अपने जवानों को भी बढ़िया रखता है। तो जय हिंद टू एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस शो के ऊपर, जहां पे हम लोग टॉपर्स को बुलाते हैं और टॉपर्स से सुनते हैं उनके स्ट्रैटेजी, उनके सैक्रिफाइसेस की कहानी। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमारे साथ में एक और टॉपर जुड़ चुके हैं जिनका नाम अनिकेत अग्रवाल है। अनिकेत अग्रवाल का रैंक इस बार 2022 के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर 16 आया है। तो भाई 16 रैंक लाना एक बहुत ही बड़ी चीज है और अनिकेत से बात करेंगे उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में, उनकी प्रेजेंट जॉब के बारे में, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में और फ्यूचर किस तरीके से वो अपना देखते हैं और कैसे वो आप सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे। सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्टली वेलकम करेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म अनिकेत अग्रवाल, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, ऑल इंडिया रैंक 16। अनिकेत, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Thank you so much to invite me here. And as you asked about my background and from where I come, so I did my schooling from Aligarh. I originally belong from Aligarh, and after 15 years of schooling, I got admission in a private engineering college in Ghaziabad, and I secured good marks, and I was a rank holder in AKTU as well. In whole 750 colleges of AKTU, I got 6th rank in university. So then I got a placement in Suez India Private Limited, French MNC, and they're based at France, and they have operations in India as well. So I worked as an hydraulic engineer there for a year, but I was not feeling that kick, you can say, or that sense of social responsibility was not there in that job. So I always had the dream of serving as a public servant or somewhat. So I left the company amid Corona, and then I started preparing for civil services. So I took the exam in 2021, in 2022, and meanwhile I exposed to an exam of Ministry of Home Affairs as an intelligence officer. So I cracked that exam, and meanwhile, while I was preparing for that exam, I exposed to security domain as well. Earlier, I wanted to be in the development administration, IAS and all. So that security domain, and during the training, I came to know that it's very important. The security thing provides the stability on which the development happens. So that stability part is very important. So when I was exposed to all those things, so it came to my mind that why not CAPFs? So I went through the syllabus, I went through what all is required, the physical requirements required and all those things. So it came to me that yes, I can do this as well. So I filled the form. This was my first attempt. Okay. And I took the exam, I prepared for it, and the result is with you. Correct. Very good, very good. मतलब within 2 minutes he explained everything almost. बट ये 2 मिनट के लिए ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड वो हार्ड वर्क जो है ऑब्वियसली इनके 2 साल का एफर्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ही टुक 2 years टू मेक श्योर कि भाई सर्विसेज में जाना है तो कोई भी सर्विसेज हो, सिक्योरिटी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, बट ही टुक 2 years ऑफ हार्ड वर्क टू मेक श्योर कि भाई अच्छा मुझे रैंक भी मिले और सर्विसेज में मैं अच्छे लेवल पे भी जाऊं। Sorry to interrupt you, but I want to say this as well, that obviously there should be a plan B for things, because civil services are getting tougher and tougher, as you have seen the prelims of this year. But the thing is, you cannot go haphazard in one direction or in another direction. You have to choose your exams. You have to choose a set of your exams which are on the similar pattern.
so that you can put your energy in one direction which can be used in other thing as well. It's not like you're preparing for UPSC CAC, now you also want to do CGL and CHSL and what all. So things won't work like that, or you want to go in bank as well. So no, you have to choose your direction, you have to choose your domain, and in that direction whatever exams you find, whatever different exams you find, and you have to assess your caliber as well. So self assessment is very important if you want to crack these kinds of exam. UPSC, any exam you take, whether CAPF or EPFO or CSE, all these UPSC exams are at the another level. So for those you have to set your mindset. You have to make sure that you are almost cut off from the deviations. All those things you have to do. Corona, in the sense, somewhat helped me. Maybe it's not a good thing to say, but because in Corona your friends were not going anywhere, everyone everyone was locked in their homes, and it was the best time that you can focus. Okay, the things were not good around, but you can focus at that time. You have ample amount of time, less distractions, and it really worked. And for 2 years I dedicated myself for the exams and for the pace I want to have, because I have an engineering background and this GS and all, they are different things. So it took time, and I think it's now it's Now, good. what I'm able to understand is कि yes, you need to focus on your first priority, but should need to have other backup options also. Exactly. And this is a very good advice to all of you students कि भाई अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी तैयारी कीजिए, बहुत दिल से लगा के कीजिए, बट साथ ही साथ ऑप्शंस और भी रखिए. CAPF भी हो सकता है. इनफैक्ट मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो टॉपर बने हैं, वो गॉट वेरी गुड मार्क्स, बहुत अच्छा कुछ उनका रैंकिंग भी है. दे हैव समवेयर इन द एंड ऑफ द डे दे हैव दैट सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड, राइट. तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड है, तो आप उस बैकग्राउंड को इस्तेमाल कीजिए स्टेट सिविल सर्विसेज में भी, या फिर यू कैन यूज इट इन CAPF के अंदर भी, क्योंकि CAPF का भी अभी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है. तो अनिकेत, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि बचपन से ही आपने बोला कि भाई मैंने टॉप किया कॉलेज के अंदर और अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, तो सिविल सर्विसेज की जब तैयारी आपने शुरू की तो ये माइंडसेट ज़रूर होगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लूंगा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. बट जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो देन यू व्हाट वाज योर माइंडसेट? बिकॉज ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे कि जिन्होंने सोचा सिविल सर्विसेज होगा, अब वो लोग जो है थोड़ा सा घबरा रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस. सो व्हाट वाज दैट माइंडसेट जो आप स्टूडेंट को बताइए उस टाइम का? Things were a bit different for me. I never faced any kind of criticism from my friends or my family. They always believed in me. They always encouraged me. And I never doubted myself कि मुझसे नहीं हो पाएगा. It's like कि yes, things are very dynamic in that exam, and things we can get in different direction because it's a matter of 2 hours for prelims. So I never doubted myself. And still, if I go to the services and if somewhere I found that maybe I should still prepare for civil services exam, I will definitely go for it again. So it's not, but currently I'm of the opinion that yes, I'm getting CISF, I'm getting a good rank, so I'm satisfied in it, and I'm looking forward to have a good career in this. So yes, my mindset was clear that I never doubted myself, and one should never doubt himself or herself. And before preparing, you should assess yourself. You should see the question paper. You should assess the competition first before just diving into this ocean. So that's very important. And I repeat myself that self evaluation is very important. Correct evaluation is very important. Right. एक और चीज़ है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की उस टाइम पे जब आपने ये सोच लिया कि चलो CAPF भी देता हूँ मैं, CAPF का प्रोसेस आपने फॉलो किया, एंड धीरे धीरे जब वहाँ पे व्हेन यू क्लियर द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, बिकॉज अनसर्टेनिटी CAPF में भी बहुत सारी है, एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो आउट भी हो जाते हैं, और रिजेक्शन स्टेजेस बहुत सारी है, फिल्टर बहुत सारा बच्चा है. तो जब आपको वहाँ से सक्सेस मिली तो अल्टीमेटली यू गॉट
ऑल इंडिया रैंक 16, तो शायद मोटिवेशन अब और ज्यादा हाई हो गया है कि यार Yes. मैं सिविल सर्विसेज भी आगे जाके ट्राई करता हूँ. इज इट सो? I won't say that I will definitely कि मैं ट्राई ही करने वाला हूँ मतलब सिविल मोटिवेशन सर्विसेज. या कॉन्फिडेंस Yes, थोड़ा बढ़ गया होगा. कॉन्फिडेंस जब मेरा हाँ. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी सिलेक्शन हुआ, इट Right, बूस्टेड right. माय Yes, कंपटीशन yes. एज वेल, क्योंकि द कंपटीशन वहाँ भी बहुत सारा था. एटलीस्ट एज वी वर टोल्ड कि 16 लाख एप्लीकेशंस आए थे एंड इवेंचुअली 2000 पीपल गेट सिलेक्टेड. तो आई हैव ऑलरेडी बीटन दैट कंपटीशन एंड तो वहाँ से भी था एंड विच रियली हेल्प्ड मी इन द इंटरव्यू एज वेल. तो इंटरव्यू में जब मैं अपना बैकग्राउंड बता रहा था या फिर मैंने कॉलेज टाइम में जितनी भी चीज़ें करी हैं, एक चीज़ मैं और थोड़ा ऑफ द टॉपिक मेंशन करना चाहूँगा कि अपने आप को एक्सपोज करना है आपको. व्हेन यू आर इन कॉलेज, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करिए. आप अपने आप को डिफरेंट डोमेन्स में या डिफरेंट फील्ड्स में अपने आप को एक्सपोज करिए, वेदर इन स्कूल कॉलेजेस. इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है, आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है. तो जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने कॉलेज में नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स किए हैं. हाँ, काफ़ी लोग फैमिलियर होंगे, एक स्टूडेंट फार्मूला रेसिंग कार इवेंट होता है, तो सुपरा जिसे हम कहते हैं, तो मैंने 2 बार सुपरा में पार्ट लिया. फिर हमारे कॉलेज में डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते थे, मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आपका बनता है कि हाँ, आई एम बेटर देन सो मैनी पीपल एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई एम एक्सपोज टू एट हायर लेवल्स. तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ. और एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा विच हैपेंड वेरी गुड, और कैसे आपको वो पास चीज़ें हेल्प करती हैं. तो जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इंटरव्यू दे रहा था, सो सीनियर आईपीएस मेंबर आस्क्ड मी कि अनिकेत, प्लीज टेल मी द most challenging thing you faced in your life. So straight away an incident came to me which happened to our team and I was the final year student, so we were the leaders of the team. कि हमारी कार जो थी वो टकराई क्योंकि स्लिपरी रोड थी और उसका हब रप्चर हो गया था. तो वी on the very same day we airlifted a duplicate part from the कोलकाता and overnight हमने पूरा वर्क किया and हमने चारों पहिए पे गाड़ी खड़ी कर दी. तो जब मैंने उनको ये पूरा एक्सप्लेन किया, सो आउट ऑफ द प्रोटोकॉल उन्होंने लास्ट में कहा कि अनिकेत, वी विश टू हैव कैंडिडेट्स लाइक यू इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो इट वाज सच एन अमेजिंग मोमेंट और सच अ फुलफिलिंग मोमेंट फॉर अस. तो इसका बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप लाइफ में काम करेंगे, जब आप काम मेहनत करेंगे, तो आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता होगा और कहीं ना कहीं वो मेहनत किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो हेल्प करेगी. नहीं, वेरी वेल सेड. इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम जब बच्चे को 18 से 25 साल तक अपने आप को पूरा कर देना चाहिए, Groom ओवर करना एक्सपोज चाहिए. करना चाहिए. Yes. और वहाँ पे आपके पास कॉलेज के टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और अगर आप उस चीज को एक्सपोज करोगे, अपनी पर्सनालिटी को और से ज्यादा एक्सपोज करोगे, सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज दैट इनबिल्ट कॉन्फिडेंस भी Yes. आएगा. और जब जैसे अनिकेत ने कहा कि भाई मैंने जब एसएसएस या आईपीएस जो थे उन्होंने जब सवाल पूछा तो मैंने वैसे आंसर्स दिए, बिकॉज उन्होंने अपने पास में वैसे ओवर एक्सपोजर किया हुआ था, लिया था. सो अनिकेत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सीएपीएफ 2022 का ऑल इंडिया रैंक 16, तो मार्क्स कितने कितने आए पेपर 1 में, पेपर 2 में, इंटरव्यू में, और फिजिकल मेडिकल के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा, Yes. उसके बारे में बताइए. I got paper 1 पेपर 2 combined मेरे 271 मार्क्स है. ओके, एंड व्हाट अबाउट पेपर 1 एंड पेपर And 2? पेपर 1 171 मार्क्स अच्छा, and ठीक है. पेपर 2 100 मार्क्स. ओके. एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू, मैं इस पे भी आऊँगा क्योंकि मैं अपने इंटरव्यू पार्ट थोड़ा स्ट्रांग मानता हूँ. बट आई गॉट 98 मार्क्स विच इज़ नॉट बैड, बट इट्स बिलो एवरेज. जो आप टॉपर्स का देखेंगे 110 120, इस साल 130 भी गया है. इनफैक्ट 130 मैं सोचता हूँ कि भाई 100 130 नंबर लाना, इट मींस कि उस बंदे में कुछ बहुत कमाल की चीज होगी. बट मुझे ये भी लगता है कि 130 नंबर क्या 150 नंबर भी बच्चे के आ सकते हैं, अगर वो उसमें स्टैंडर्ड अगर है, क्वालिटीज हैं, तो पैनलिस्ट मार्क्स देने में प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं. मैं थोड़ा इस पर डिफर करूंगा क्योंकि 150 देने को आप दे सकते हैं, हाँ. बट फिर भी थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी शायद हो सकती है. 130 मार्क्स आई थिंक पहले हिस्ट्री में कभी नहीं आया, कभी interview नहीं में है, कभी नहीं है. तो इससे बहुत ज्यादा स्क्यूड हो जाती हैं चीजें. तो ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी वेरी गुड, बहुत अच्छी होंगी चीजें, बट फिर भी 130 थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है. लेकिन अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ, डैफ, मैं अब यहाँ पे डैफ की आपको बहुत इंपॉर्टेंस बताऊंगा. डैफ में मैंने एक जगह मेंशन कर दिया था दैट आई एम गुड इन स्केचिंग एंड पेंटिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑल माय बैडमिंटन स्टेट लेवल प्लेयर, ऑल दोस थिंग दैट वर वेरी ट्रू. स्केचिंग एंड पेंटिंग वाज आल्सो गुड, बट द चेयरमैन सर आस्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी
कि अनिकेत, if you do sketching and painting, please tell me a name of any current painter or an artist. And I was completely blank in it. So he was very disappointed and he just, उन्होंने फिर पूरे इंटरव्यू में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. I answered all the question of all the panel members very well, and that's why I got 98 marks. But the chairman sir was very disappointed, and जब मैं इंटरव्यू बाहर दे के आया, मैंने कहा हो गया. अब तो गया. Although मुझे पता था मेरे रिटर्न में अच्छे मार्क्स है, तो मेरे को श्योर था कि मेरी रैंक आ जाएगी, बट मुझे ये नहीं लग रहा था अगर उन्होंने 80 वगैरह मार्क्स दे दिए तो मैं एकदम, फिर मुझे एकदम शायद या तो रिजर्व लिस्ट में आना पड़ेगा या फिर बहुत नीचे रैंक आएगी. तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. तो ये मैं बस आपको कहना चाहूँगा, डेफ में आप जो भी मेंशन करें, ऑनेस्टी के साथ मेंशन करें, और आप उसके बारे में बहुत थरो होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ में किया है चीज़ आप जस्ट मेंशन कर दो. आपने किया है, थोड़ा अच्छे से किया है, और या फिर अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो डेफ में आपने जो भी अपने पास से लिखा है उसको थॉरोली, उसमें अच्छे से एकदम हर चीज़ पढ़ के, करंट में क्या चल रहा है सारी चीज़ें करके जाएं, एंड इट विल रियली हेल्प. यस. तो फर्स्ट क्वेश्चन से कहीं ना कहीं चेयरमैन को तो लगा होगा कि भाई ये बंदा जो है थोड़ा ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन बाद में यू हैंडल्ड इट वेरी वेल. बट यस. हाँ, चेयरपर्सन को खुश करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कौन थे आपके? बीबी स्वैन सर. ओके, अलग था. राइट. ठीक है. सो अल्टीमेटली रैंक 16 तो आ गई, एंड फर्स्ट प्रेफरेंस एज यू जस्ट सेड CISF. यस. ठीक है. CISF के अंदर आप जाने वाले हैं, तो मुझे ये बताइए कि CISF आपने चूज तो कर लिया, इज इट जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली आपने सोचा होगा यार थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बेटर मिलेगा, लेकिन जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जॉब है उसमें तो मुझे नहीं लगता वर्क लाइफ बैलेंस इतना हो रहा होगा, या ऐसा है? ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है. हाँ, तो बट मिसकंसेप्शंस को क्लैरिफाई कीजिए. बट आप जब डिफेंस में आते हैं तो अलग अलग तरीके के जॉब चैलेंजेस होते हैं, और ये ज़्यादा आपको डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है. इफ़ यू आर पोस्टेड इन श्रीनगर और लाइक नक्सलाइट एरियाज और इन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट एरियाज, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस में इशू, या फिर बॉर्डर एरियाज इश्यूज होते हैं. बट इफ़ यू आर पोस्टेड इन लाइक प्लेन एरियाज और पीसफुल एरियाज, तो बहुत ईजी रहता है. और फिर जब आप जॉब में जाते हैं, डिफेंस फोर्सेज में जाते हैं, तो आपका ये माइंडसेट ही होना चाहिए दैट यू आर देयर टू सर्व द कंट्री. तो आप सर्विंग फॉर द कंट्री कम्स फर्स्ट. आपका खुद का जो कंफर्ट है दैट शुड कम सेकंड. एंड टॉकिंग अबाउट CISF, जैसे मेरे CISF चूज किया, तो यस, वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात थी. जब आपके पास 5 ऑप्शंस हैं और अगर आपसे फिर भी पूछा जाएगा तो आप वही चूज करोगे जिसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रहता है. बट इसके अलावा मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और अभी ही रिसेंटली मैंने मेरी जिस अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मैंने एक सिक्योरिटी ऑडिट किया. तो मैंने वो फील किया कि हाँ, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैं उस इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है उसको मैंने अच्छे से ऑडिट कर पाया, उसको सिक्योरिटी ऑडिट की रिपोर्ट हम अच्छे से दे पाए, सही क्वेश्चंस पूछ पाए, सही लूप होल्स निकाल पाए. एंड दैट थिंग आई थिंक कि मैं अब जब आने वाला जो CISF मेरी होंगी सर्विसेज, उसमें भी मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा. और जो मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग्स हैं वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. बीट ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग होती है व्हेनेवर अ VIP विजिट्स इन आवर एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन. तो ये सब चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, और इस ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ऑब्वियसली CISF also comes from, or all the paramilitary comes from Ministry of Home Affairs. So it will eventually help me. And if you are only searching for work-life balance, then you should not come for the defense. And if you think like yes, you have to serve, or you want to serve for the nation first, and meanwhile अगर आपको work-life balance भी मिलता है, then it's a cherry on the cake only. करेक्ट. अच्छा, यू जस्ट सेड कि 5 फोर्सेस है, उसमें से एक तो चूज करनी है. तो मेरा तो फर्स्ट CISF है. अब जनरली ऐसे लोगों की विचारधारा है कि भाई CISF ही वहाँ पे बेटर ऑप्शन देती है. अब जैसे एक है अंकित है, उसका जो रैंक है 29 है मेरे ख्याल से, 28 या 29. उसको आराम से CISF मिल सकती थी, बट उसने CRPF चूज की. exactly. अब वो बंदा जिसको बता रहा है तो वो यही कह रहे हैं यार CISF क्यों नहीं चूज की, CISF क्यों नहीं चूज की. अब उसको जाना ही CRPF में, तो वो व्हाई वुड ही चूज द CISF. एंड आई थिंक चैलेंजेस हर फोर्सेस के अंदर होते हैं, और मुझे ये लगता है कि जो बंदा उस चैलेंजेस के अंदर मजा लेना शुरू कर दे, प्रमोशन उसी का टाइमली मिलता है, और वही बहुत बढ़िया तरीके से अपने जवानों को भी बढ़िया रखता है. एंड द मेन थिंग, यू आर वैल्यूड फॉर योर वर्क.
आप अच्छा काम करोगे तो आपकी वैल्यू उस तरह से ही होगी। यस अब आप किसी भी फोर्स में चले जाओ, बीट CISF, और उसमें आपका वही अगर एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, तो आपको वहाँ पे वैल्यू नहीं किया जाएगा। सो इट्स अबाउट व्हाट यू वर्क। और अंकित को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, जैसे आपने भी बताया, तो he is very energetic and he is very dedicated towards CRPF, so why not? CRPF is also a force and they want good candidates as well, so why not? मैं अंकित के बारे में एक दो चीजें और बताता हूँ, क्योंकि उसको तो मैं काफी टाइम से जानता हूँ। ये बेशक अनिकेत का इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन अनिकेत अंकित दोनों मतलब सिमिलर हैं सारी चीजें। सो अंकित की बात करूं तो स्टूडेंट उसने शुरुआत तो बहुत पहले से की। 10-15 SSBs भी दे चुका था। हर SSB में वो ये सोच के जाता था कि यार मैं ना इस बार सिलेक्ट होके आऊंगा, और जब बहुत ज्यादा उम्मीदें होती थी उसको, उस टाइम पे वो पहले दिन ही आउट हो जाता था। सो ऐसे ऐसे फेज उसका गया। फिर उसके बाद वो जो ग्रुप C या D की जॉब होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, उसने वो की। जैसे वो डिपो होते हैं ना, राशन डिपो होते हैं, वहां पे उसने काम किया। CSD कैंटीन वगैरह जो होती है आर्मी की, फौज की, वहां पे उसने काम किया। उसके साथ साथ उसने ये CAPF का भी वो देता रहा, और अल्टीमेटली ही गॉट दिस रैंक। सो मुझे ये लगता है कि यार हर बंदे का ना एक एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रगल है टू अचीव दिस कैटेगरी ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? तो मैं और यहाँ पे मैं वो भी हाँ ऐड करूंगा कि आपने जो कॉन्फिडेंस वाली बात करी, जब वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेलेक्ट हुआ, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली उस लेवल पे बढ़ा, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा, और उसने फिर वो रिजल्ट देखा। क्योंकि पॉइंट इज स्ट्रगल बंदा इतना करके, अब हर बंदा लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आता है। Exactly. वो लड़का सोचता है कि भाई आगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, तो धीरे धीरे उसका अंदर से वो टूटता रहता है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारी जितने भी ऑडियंस है वो सोचती रहती है सर कब सक्सेस मिलेगी, कब सक्सेस मिलेगी। तो अंदर से वो थोड़ा बहुत वीक पड़ता है, सामने नहीं दिखाता होगा बट अंदर से वीक पड़ता है। जैसे उसे सफलता मिलती है, कहीं पर भी मिलेगी, वो धीरे धीरे फिर उठना शुरू हो जाएगा। अंकित के साथ ऐसे ही वो क्लर्क में उसने जॉब करना शुरू की। ही वॉज सो क्वालिफाइड, MSc कर चुका है वो, सो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो। उससे आगे जब धीरे धीरे बढ़ता रहा तो उसको सफलताएं मिलती रही। एंड सेम अप्लाइज टू विद यू ऑल्सो, कि भाई आपने भी कोशिशें करते रहे और आपको मिलती रही सफलता। अनिकेत, कुछ ऐसी साइड अपनी बारे में बताइए जो स्टूडेंट को लगे कि ये बंदा सीरियस तो है, लेकिन दूसरा फनी साइड भी है इस बंदे का, जो कि बहुत मजेदार है सुनने में। कुछ है ऐसा फनी? मतलब there are so many personal things which I don't want to discuss, but yes, funny side है, चीज़ें हैं, और आपको लाइफ में बैलेंस तो बना के चलना, आप केवल बंद होके पढ़ नहीं सकते। और बीइंग एन इंजीनियर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, तो अब आप और सारी चीज़ें भी समझ लीजिए अनसेट तरीके से। so there is a different thing and different charisma, और you know a different everything about mechanical engineers which I personally feel. So ठीक है, all those things apart, so yes, there is a funny side as well, and I also like to go to parties and hang out with the friends, and I also like traveling as well. जैसे currently I'm posted in Himachal, so I am like doing all the treks and going to like extreme places, Kinnaur, Lahore Spiti. So all those things are going on, so you have to enjoy, work hard, but keep enjoying as well. You have to maintain the balance, you cannot just नहीं तो enjoyment करते कैसे, वो तो बताओ। बैडमिंटन, आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, सो बैडमिंटन वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग। तो जब आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो आप शाम को थोड़ा सा खेलिए। सुबह पापा के साथ वॉक पे जाता था ताकि फैमिली से भी कनेक्शन रहे, बाकी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती थी। तो सुबह वॉक पे जाइए, थोड़ा अगर आप थोड़ा अच्छा लेवल अचीव कर लिया है तो आप जिम भी जाइए, क्योंकि फिर थकान रहेगी पूरे दिन तो पढ़ने में थोड़ा इशू हो सकता है। बट अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं और आपको लग रहा है कि एक लेवल अचीव हो गया है तो आप जिम भी जाइए, फिजिक मेंटेन करिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप फिर बैक ट्रैक हो जाएंगे जब आप बीमार पड़ेंगे। तो वेरी वेल, ये सब एंजॉयमेंट। और आई रियली लाइक टू वॉच क्रिकेट मैचेस, तो क्रिकेट मैचेस नहीं मिस करता था मैं। हालांकि अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं स्कोर एटलीस्ट देख रहा हूँ, तो स्कोर देखना रहता था। तो वो चीज़ मैंडेटरी रहती है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल इंडियन बॉय। क्रिकेट नहीं मिस कर सकते, अपना हॉबी है वो खेल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी साइड बाय साइड आपको चलानी पड़ेंगी, और तभी है सब बढ़िया। नहीं, आपने कहा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो उस टाइम तो बहुत कमी होती होगी, अब तो मेरे ख्याल कमी नहीं होती होगी। अब मैकेनिकल इंजीनियर से कम हो रहे हैं। एक्चुअली CS और ये IT ब्रांचेस एंड एक्सपोजर प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा है,
that people are now opting more for CS and IT branch. अच्छा. So mechanical का craze थोड़ा comparatively अब कम हो गया. Hmm. For example, in my college, earlier it used to be like 3 sections of mechanical, now 1 only, and now 10 sections of civil, Okay. CS Okay. and IT. So Right. थोड़ा चीज़ें change हो रही हैं. Hmm. तो yes, that's ठीक है. So अनिकेत, any last motivational या कुछ ऐसे दिल की बात जो स्टूडेंट से बताना चाहते हो, क्योंकि आप तो अब वो उस टेबल के उस तरफ आ चुके हो. yes. एंड नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि टेबल के उस तरफ भी आने के बाद भी बंदा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, बिकॉज द प्रोसेस इज सो अनप्रिडिक्टेबल एंड फुल ऑफ शॉकिंग रिजल्ट्स कि भाई इंसान को लगता है कि भाई मैं जहाँ से आया हूँ ना, उस चीज को मैं हमेशा याद रखूंगा. सो आपसे बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा स्टूडेंट के सर्कमस्टांसेस को. एंड आप इन स्टूडेंट को बताओ कि अभी रुकना नहीं है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन वर्किंग, एंड दैट्स इट. ओवर टू यू. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप के लिए ट्रूथफुल रहो. कभी अपने आप को झूठा दिलासा नहीं देना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. काफ़ी लोग बस इसलिए रहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ. आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है. आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, खुद से झूठ नहीं बोलना है. एंड परसिवियरेंस, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको बार बार काम करना है, बिकॉज कॉम्पिटिशन दीज डेज रियली वेरी हाई. तो आपको कंपटीशन समझना है, खुद का एवेल्यूएशन करना है और रुकना नहीं है. फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं हर तरह की, सबका फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक नहीं होता है. तो आपको खुद को समझाना है, अपनी टाइमलाइन सेट करनी है और उसकी तरह डेडिकेटेडली वर्क करना है. फिर उसके बाद जब एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. आपको सोसाइटी भी प्रेस करेगी, आपको लोग भी प्रेस करेंगे, आपकी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी. दैट्स ट्रू. और यू विल फील ऑसम on this side of the table. So best of luck. सो अनिकेत ने एक और चीज बोली है कि भाई अब अनिकेत जब सिलेक्शन तो हो चुकी है, ट्रेनिंग के लिए जब जाएंगे, ये ट्रेनिंग करके आएंगे तो डेफिनेटली जो बच्चे होंगे उनसे मिलेंगे. ऑफलाइन भी मिल सकते हैं जैसा इनका टाइम अलाउ करेगा. एंड वो जो होता है कि इंस्टेंट मोटिवेशन, जो रियल मोटिवेशन होता है, वो भी ये बताएंगे कि 1 साल का पूरा इनका ट्रेनिंग का स्केड्यूल कैसा था, कितना रगड़ा खाया, कितना लोग ग्लैमराइज कर देते हैं इन फोर्सेस को कि 90,000 मिलेगा, 80,000 मिलेगा और तुमको वर्दी मिलेगी तो बहुत मजे आएंगे और ये सब. बट वो रियल इनसाइड भी अनिकेत जरूर बताएंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो दैट यू हैव टू थिंक एंड वर्क ऑन इट. तो अनिकेत, डेफिनेटली वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक. और आपने बहुत अच्छे से काम किया है, आगे भी करते रहिए और जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते रहिए. एंड आपको तो है ही है, आपके पेरेंट्स को भी है, जिस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड किया है. तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप आगे इसी तरीके से बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू अनिकेत.